Okay, very good question. Double figure है. So now it's a question of 9.1 NCERT की exercise है, and that question is from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building, 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी कि ट्रांसमिशन टावर की आपकी हाइट आपको निकालनी है. वेरी नाइस. आपको सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव अपना ना, तो सोल्यूशन नंबर 7 में सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा. फिगर आपने बना लिया तो आई सेड टू यू आपका सो मेनी टाइम्स 40% का आपका नाम होगा दिस होगा, तो नाम होगा दिस होगा BUILDING. ये बिल्डिंग है. इट इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. तो आप इसको बिल्डिंग को B और G कर सकते हैं आपका देखो बिल्डिंग से. एंड इसके ऊपर आपका नाम देखो दिस ए वन ट्रांसमिशन टावर. वन ट्रांसमिशन टावर T and T ट्रांसमिशन टावर. इसको T ले लेते हैं. And one point on the ground, and one point on the ground, which is your A, it's making an angle of elevation with this top of tower, with this top of tower. ये line of sight ऐसे होती है, because you are looking the top from the bottom, तो angle आपका देखो ऐसे होगा, and this theta is equal to अपना 45 degree. And the height of this building is H is equal to, it is 20 meter high. And from the same point, let the height of this transmission tower is H dash H1 meter. So now, at its top, from the same point A, it's making an angle of elevation of 60 degree area. This complete angle, this complete angle will be आपका 60 degree. यानी कि this figure is also the combination of the two figure आपकी आ गई आपका. अब आपका देखो this is 20 मीटर है, ये आपको निकालना है. तो देखो सबसे पहले आपको याद रखेगा whenever you have to find out the height, आपको base and base you have taken आपका x, ये आपको पहले first priority to find out this. जब बेस निकलेगा तभी हाइट निकलेगी, और जब हाइट पूछी है तो बेस, और जब बेस पूछा है तो हाइट. सिंपल सी बात आपका. When you have to find out the height, it means in second equation you have to put the value of this x, and when you have to find out the base, so you have to put the value of h on second equation. फिगर आपका देखो ये भी हो गया फाइंड आउट, आपका ये भी फाइंड आउट हो गया. डबल मारा है इसका, तो पहले इसको फाइंड आउट करो फिर इसको फाइंड आउट करो. Then now, this is the then explanation. Now, BG is 20 meter high building, and capital A is a point on the ground, is making an angle of elevation of 45 degree with its top, of the building, and let TB as a transmission tower which is H dash meter, and to be find out is making an angle of elevation of 60 degree with its top from the
the same point A. ये हो गया. BC is आपका देखो and A is a point on the ground. आपका नाम इसको लिख देते देखो on the ground. थोड़ा और क्लियर कर दें. Which is X meter आपका देखो far from building S. चलो वो नहीं आ रहा हूँ. फ्रॉम बिल्डिंग एस मेकिंग ये. अब ये बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लियर हो गया आपका बिल्कुल ऐसे से. एक्सप्लेनेशन के बाद आता है मतलब शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन. यानी कि इसका जो छोटा रूप होता है अपना देखो इसमें अब आपका देखो ना द फर्स्ट पॉइंट आपका देखो गिवन में देखो आपका BG इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग और आपका H इज इक्वल टू 20 गिवन है. देखिए सेकेंड angle GAB is about 45 degree and angle of elevation with top of building from A point A. ये भी given है. Then angle GAT is about 60 degree. Angle of elevation with top of transmission tower from point. अब यहाँ पे then the find out. Found out में अगर this is let AC is equal to X meter. ये आपको फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम बॉटम ऑफ बिल्डिंग. और दूसरा आपका नाम देखो लेट TB. आप BT करिएगा उल्टा लिखते हैं इसको ऊपर से नहीं. BT किसी कर रहे H डैश मीटर. Listen. Height of transmission tower. This is the double figure. Double figure में आपका हमेशा 3 points will be known and 2 points unknown. और unknown ही आपको find out करना होता है. अब ये होगा. Now the very important point of this question is, and that is the calculation part. वर्किंग स्टोरेज सेक्शन. अब आप पहले छोटा वाला ट्रायंगल आपका देखो ना. एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका GAB आपका देखो एंगल ऑफ एलिवेशन. इसलिए मैंने ऐसे लिखा. आपके स्कूल टीचर इसको ऐसे लिखते होंगे BGA. मैंने लिखी एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल क्लियर लिखा है. अब यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए या तो आपका कॉट यूज करते हैं या तो आपका यू हैव टू यूज 10. आइदर एनीथिंग आपका यू हैव टू फाइंड आउट. समझ रहे ना. तो अब आपका क्या करें ना 10 थीटा इस इक्वल कोई जरूरी नहीं. आपने अगर अवसर बार बार 10 दे दो कॉट थीटा इस इक्वल बेस ओवर परपेंडिकुलर. आज हमने कॉट थीटा यूज कर लिया. देखिए तो ना क्योंकि यहाँ फॉर्मूला आपका क्या
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेन थीटा रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा, cos theta का the reciprocal is sec theta, and the reciprocal of sin theta is known as the cos of theta. This is the combined formula of the joint venture of 6 trigonometrical ratios. तो जब perpendicular और base में से either anything आपका you have to find out, तो आपको tan theta या cot theta यूज करते हैं। आज हमने क्या किया, cot theta यूज किया perpendicular। तो base is what, ना तो GA upon perpendicular is what, Z, and theta is equal to आपका देखो 45 डिग्री है, तो ना देखो जैसे cot 45 डिग्री is equal to now H upon X, तो cot 45 आपका 1 is equal to H is आपका 20 upon X। तो therefore देखो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चलेगा ना, X is equal to upon 20। The value of 30 degree, 45 degree, 60 degree, at least everybody has to be know। 0 डिग्री अगर आप करते हैं तो आपका ना कई बार होता है साइन 0 की वैल्यू निकालो या टेन 0 की वैल्यू बताइए आपको ना, तो मतलब सिंपल बच्चों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आप सब जो है ये कहाँ काम आएगा, जहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाले इससे पहले वाला चैप्टर था जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला। लेकिन अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ही है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ये तीन ही एंगल चलते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, आइदर दैट इज साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन एंड कॉट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो सम आपका इससे पहले का जो था आपका वो इंट्रोडक्शन टू आपका ट्रिग्नोमेट्री, उनमें ये सारे आपके चले, केवल आपको कंप्लीट किया चले। नाउ अब आपका सेकेंड पार्ट आपका नाम को इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ GAT। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका सिंपल देखिए आपका नाम देखो, ये दिस वाज योर 45 डिग्री, ये A था एंड दिस Z एंड दिस B, ये आपने पहले आपका फाइंड आउट किया। नाउ बिकॉज दिस वन इज अ लार्जर ट्रायंगल, लार्जर भी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आपका है देखो, तो यहाँ आप कोई चीज जाने ना जाने, ये अगर दिस इज T, दिस इज B, दिस इज G एंड दिस आपने अब X इज इक्वल टू आपने 20 मीटर आपने फाइंड आउट कर दिया, एंड नाउ दिस इज योर A पॉइंट एंड नाउ दिस इज योर 60 डिग्री। तो ये आपको दिस यू हैव टू फाइंड आउट आपको दिस, this is already you have this 20 meter। Yeah, now the situation, the position of the figure is, अब आपका देखिए ना ये सब, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ऑफ x। हमने यहाँ कॉट यूज किया है, आपका स्कूल टीचर या एग्जामिनर ये नहीं कह सकता है इन द सेम क्वेश्चन व्हाई यू हैव यूज्ड दिस कॉट एंड 10 आपका नाम वेलकम कान के पीछे दीजिए। तो 10 60 का मतलब देखो रूट 10 अपॉन A। अब P इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ देखो आपका B G और प्लस B T अपॉन नाउ G A, ये है कॉम्बिनेशन। देखिएगा अगर इसका मतलब देखो आपका H प्लस H1 अपॉन X, दिस इज द ट्रू कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। अब H का मतलब देखो 20 और प्लस H डैश अपॉन X, सो इट विल गो अप। तो ना कई बच्चे इसको x रूट 3 लिख देते हैं, नहीं पहले सॉल्व आती है रूट 3x इज इक्वल 20 और प्लस H प्लस। अब आप करेंगे ये आपका
This is your second equation. Now, substitute the value of x is equal to 20 meter. Root 3 into 20 प्लस h. अब ये जब आपके पास वेरिएबल होता है तो रूट आगे आता है और जब नंबर आ जाता है तो रूट पीछे आ जाता है. हमेशा याद रखिएगा. रूट इज द 20 रूट 3 and minus 20 is equal to h dash. ये आपका it has gone in OT. So now 20 is common. आपका root 3 and minus 1 is equal to h dash. So now 20, the value of root 3 is 1.732 and minus 1 is equal to h dash. तो शॉपिंग भी कर देते 20 into 0.732. 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 7 the 40. डेसिमल के बाद 3 पीसेस है. लास्ट में देखिए डियर फोर द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर और वो आपका देखो एच डैश इसे कर दो आपको कितना था 14.64 मीटर. ये तो आपका और जो आपका है देखो द नाउ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बॉटम ऑफ बिल्डिंग. ये अभी आपने x इज इक्वल टू आपका 20 मीटर ये आपने निकाल दिया. पूछा नहीं था लेकिन बिना 20 मीटर के आपका ये फाइंड आउट नहीं हो सकता. इज इट क्लियर सर? प्लीज प्लीज. चलिए आप मेरी शकल मत देखिए सर.